सहज नहीं है, सरल नहीं है। There are no flights going to Jambudweep. और यहाँ से कोई जम्बू द्वीप के लिए वायुयान भी नहीं है। Nobody is going on pilgrimage to Jambudweep. और जम्बू द्वीप की इस्कॉन की यात्रा भी नहीं निकलती। Because this is Kali Yuga. क्योंकि ये कलयुग है। But in other yugas, people would go to these places. लेकिन पहले के युगों में लोग अलग-अलग द्वीपों पे, जम्बू द्वीप पे जाते थे। So Maharaj Parikshit wants to hear in detail some details about Jambudweep. और महाराज परीक्षित जम्बू द्वीप के बारे में विस्तृत वर्णन जानना चाहते हैं। He wants to understand how this place, how it exists, and the nature of that place. तो ये जो जम्बू द्वीप है उसकी स्थिति कैसी है, उसमें क्या विविधता है, इसकी उत्सुकता और जानकारी परीक्षित महाराज को चाहिए। So Prabhupada explains how in the Gayatri mantra and Brahma Gayatri, Bhumandala is mentioned there. श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे ब्रह्म गायत्री मंत्र में भूरलोक का वर्णन आता है। Bhumandala is one of the planetary. Jambudweep is situated in Bhumandala. और ये जो जम्बू द्वीप है वो भूमंडल में स्थित है। And in Jambudweep you get Meru mountain. और जम्बू द्वीप में हमें मेरू पर्वत का वर्णन मिलता है। And so it was Meru mountain, of course, is all gold. So sometimes Arjuna went there to get gold when Maharaj Yudhisthira was going to do Rajasuya sacrifice. और ये जो मेरू पर्वत है शुद्ध सोने का बना हुआ है। हम महाभारत में सुनते हैं अर्जुन जो थे वो राजसूय यज्ञ के लिए जो धन की आवश्यकता थी उसके लिए मेरू पर्वत पे जाके सोना लेके आए थे। So that's how he got the name Dhananjaya, conqueror of wealth. Right, that he could go and bring the gold from there. और इसीलिए अर्जुन का एक नाम हुआ धनंजय, जो धन के ऊपर विजय पाए क्योंकि मेरू पर्वत पे जाके वो सोना लेके आए थे। So we have to understand within the universe there are different planetary systems. Bhuvar Loka, and then Swarga Loka, the heavenly planets. तो हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में अलग-अलग लोकों का वर्णन है जैसे भूर लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक। And above the heavenly planets, then there's 4 other planets. You have Janaloka, Mahaloka, Tapaloka, and Satyaloka. और फिर स्वर्गलोक के ऊपर भी 3 और विशेष स्थिति है जो है महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। At the top of the universe is the planet of Lord Brahma, Satyalok. और सबसे ऊंचे स्थिति पे ब्रह्मा जी का सत्यलोक विराजमान है। But here Maharaj Parikshit wants to hear about Bhumandala. लेकिन महाराज परीक्षित जो है भूमंडल के बारे में जानना चाहते हैं। And particularly this region of Jambudweep. और उसमें भी जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन चाहते हैं। So to know about, Prabhupada points out that information about these things was known long ago before Sukadev Goswami spoke Srimad Bhagvatam. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो पूरे ब्रह्मांड का भूगोल है वो शुकदेव गोस्वामी से भी हजारों साल पहले भी पता था। And so Sukadeva Goswami had heard about it from other great sages in the past. तो शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण बड़े ऋषि मुनियों से पूर्व में किया था। So when Maharaj Parikshit is asking him about it, then Sukadeva Goswami is able to speak what he'd heard from other people. और जब राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो शुकदेव गोस्वामी ने जो अपने पूर्वाचार्यों से भागवत में ये सुना था उसका वर्णन वो आरंभ करते हैं। And where does all this information about Jambudweep come from? Well, it has to come from the Creator. और फिर ये जम्बू द्वीप का वर्णन आता कहाँ से? कि जिसने जम्बू द्वीप को बनाया है उससे ही उसका वर्णन आता है। Just like here, you have a building here, and if you have any problems with maybe the wiring or the water system, you may want to consult the architect, the person who designed the building. तो जैसे अगर यहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपके बिल्डिंग में कोई समस्या होती है, वाटर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसके लिए आपको जानकारी मिलेगी आर्किटेक्ट से, क्योंकि आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइनिंग किया है। You want to know about this place, and the person who designed it, he knows each and every nook and corner of the building. क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस बिल्डिंग का डिजाइन किया है उसको बिल्डिंग के हर एक पहलू के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी होती है। Other people, we just come, we just use it, we live here, we don't think about everything.
हम बाकी के जो लोग होते हैं वो केवल वो बिल्डिंग में जाते हैं, रहते हैं, उसका यूज करते हैं, लेकिन उनको कोई डिटेल ज्ञान नहीं होता उसके बारे में। But the person who built it, he knew about each and every detail of the building. लेकिन जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है उसको इस बिल्डिंग का पूरा ज्ञान होता है। In the same way, the knowledge about the universe is also there. तो इसीलिए ये ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो भी उपलब्ध है हमारे साथ। You want to understand the universe, you have to hear about it from the Creator. अगर हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके जो निर्माता है उनके मुख से इसको सुनना चाहिए हमें। There are many regions on this planet which we don't know about. तो ये पृथ्वी पे भी ऐसे कई सारे जगह है जिसके बारे में हमें अभी भी जानकारी नहीं है। There are different sections on the planet where nobody will go. They just say, don't go there. That you go there, we never see you again. तो ऐसे कुछ जगह इस पृथ्वी तल पे भी कि वहाँ पे कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर कोई जाता है तो वहाँ से वापस लौट के आता नहीं हो। There are regions like there's a place called the Bermuda Triangle. तो ऐसा एक जगह है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। And sometimes ships, big ships or airplanes just suddenly disappear. और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से जो भी बड़े बड़े जहाज जाते हैं या उसके ऊपर से हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं, वो कभी प्राप्त नहीं होते बाद में। Nobody knows what happened to them. They're never found. क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि जो भी वहाँ पे गया है वापस कभी आया ही नहीं है। We have to understand there are dimensions beyond what we know with our gross material body. तो हमें समझना चाहिए कि उनके डायमेंशन जो है हमारे ये स्थूल शरीर है और ये स्थूल बुद्धि है उसके बहुत परे है। Just like when Madhvacharya went to see Srila Vyasadeva, because there was so much conflict. Madhvacharya was preaching Dvaita philosophy, and at that time Shankaracharya had already established Advaita. तो ये हम हमारे वैष्णव इतिहास में देखते हैं, मध्वाचार्य जी ने जब द्वैत सिद्धांत को स्थापना किया और प्रचार शुरू किया तो उसमें कई सारे मतभेद हुए, क्योंकि उसके पहले शंकराचार्य आए थे और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। And so Madhvacharya was being challenged that, what you're saying is different from what Shankaracharya taught, that this is not right, you must be wrong. तो कई सारे लोग मध्वाचार्य से ये तर्क करते थे कि आपने ये कुछ रचना की है, ये कोई सत सिद्धांत के ऊपर नहीं है, क्योंकि श्रीपद आदि शंकराचार्य इन्होंने ऑलरेडी सिद्धांतों की स्थापना की है, तो आप जो है शायद से बहुत गलत हो सकते हो। So Madhvacharya decided to go to Himalayas and find Vyasadeva. और इसलिए मध्वाचार्य ने सोचा कि सबसे ऊंचे जो अथॉरिटी है हिमालय में व्यासदेव रहते हैं, मैं उनको ही खोजूंगा और उनके सामने प्रस्तुत करूंगा सब। Because Vyasadeva is the compiler of the Vedas and he compiled also Srimad Bhagavatam and Vedanta Sutra. So confirm what you're preaching with Vyasadeva. तो इसके लिए मध्वाचार्य ने सोचा कि व्यासदेव जी जो इन्होंने वेदों का संकलन किया है, वेदांत सूत्र की रचना की है, श्रीमद् भागवत की रचना की है, तो मैं जो भी सिद्धांतों को स्थापना चाहता हूँ उनका कंफर्मेशन मैं व्यासदेव जी से ही ले लूँ। So Madhvacharya actually went there to Himalayas, and he'd gone into the terrestrial region which was above this ordinary material planet Earth, which we know simply by our gross senses. He actually transcended into the higher regions. तो मध्वाचार्य जब हिमालय में गए तो जो हम सारे मनुष्यों को जगह पता है उसके परे और एक विशेष लोक है जो ये हिमालय में विराजमान है। मध्वाचार्य ने भौतिक जगत को छोड़ के उस जो उच्च लोक है उनमें प्रवेश किया। We go to Himalayas, we go to Badrik Ashram, we only find, very bare, very cold, very barren, a lot of stone, not much vegetation. But if you go to the higher regions, there's a Badrik Ashram which is beyond this earthly level, which is on the higher plane, and it's very transcendental and it's all green and lush. तो हम लोग जब जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे हमें केवल ठंडे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा फल फूल झाड़ नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य जो गए थे वो जो दिव्य बद्री है जहाँ पे व्यासदेव विराजमान है, जहाँ पे सब प्रकृति की सुंदरता है और बहुत ही हरा भरा है, उस दिव्य बद्री में उन्होंने प्रवेश किया। So Srila Vyasadeva, he resides in that higher level, on the higher plane. तो श्रील व्यासदेव जी उस उच्च लोक में दिव्य लोक बद्री में रहते हैं। And Madhvacharya, because of his
tapasya and his purity, he was able to enter into that region and meet with Vyasadeva. और मध्वाचार्य इनकी शुद्धता के कारण और तपस्या के कारण वो प्रवेश कर पाए दिव्य बद्रिकाश्रम में और व्यासदेव जी का दर्शन कर पाए. And Srila Vyasadeva confirmed that what you're preaching is good, very good, go on, keep preaching this. और व्यासदेव जी कहे कि बहुत सही बात है, आप जो सिद्धांत की स्थापना की, जो प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल सही है और ज़्यादा करते रहो इस प्रचार को. So Madhvacharya came back down to the earthly plane, and he went back and he continued his preaching. फिर मध्वाचार्य ये उनकी अनुमति लेके फिर से पृथ्वी तल पे आ गए और फिर से अपने प्रचार प्रसार को और जोरों शोरों से शुरू किया. So this is how our parampara comes about. Sometimes the other sampradayas say, you know, your parampara, it's weird, you know, it's not continuous, because it goes from Srila Vyasadeva to Madhvacharya. बहुत लोग इसके ऊपर आक्षेप उठाते हैं कि आपकी परंपरा जो है वो बिल्कुल गैप है उसमें बहुत सारे, और उसमें विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपके परम गुरु व्यासदेव जी हैं, उनके शिष्य मध्वाचार्य हुए, इसमें बहुत बड़े सालों का अंतर है. But we point out, well, Srila Vyasadev's there, he's residing in Himalayas. लेकिन श्रील व्यासदेव जी कहते हैं कि वो हमेशा बद्रिकाश्रम में हिमालय में रहते हैं. And at the end of Kali Yuga, he'll come back and he'll take up another function. और फिर जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो फिर से वो पृथ्वी तल पे आएंगे और नई सेवा को शुरू करेंगे. So our parampara is like that, is not so acceptable by other people, but we don't care about other people, we're happy. तो हमारी परंपरा जो है ये दिव्य है, तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं या जो कुतर्की होते हैं वो इन सालों को गिनते हैं और कहते हैं कि आपकी परंपरा ठीक नहीं, लेकिन हम उनको मानते नहीं, उनको ज़्यादा भाव नहीं देते. But we have to understand the process. We want to understand about this creation. We have to hear about it from authorities. तो ये जो सृष्टि का निर्माण है इसके बारे में हमें समझना चाहिए, इसको अच्छे से सुनना चाहिए, और जो अधिकारी व्यक्ति है उनके श्रीमुख से इसको सुनना चाहिए. Srila Prabhupada always gave the example. He said, just like child wants to know who is his father, and he can go to all the men, are you my father, are you my father, are you my father? It will be very difficult for the child to find his father. तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक छोटा शिशु है, उसको अपने पिता को ढूंढना है, तो क्या वो हर एक इंसान के पास जाएगा, हर एक मनुष्य के पास जाएगा, कहेगा कि आप मेरे पिता है, क्या आप मेरे पिता है, और कितने लोगों को पूछता रहेगा कि मेरे पिता क्या आप है. But if it goes to the mother will immediately say, that's your father. लेकिन वो बच्चा अगर माँ के पास जाता है और पूछता है कि मेरे पिता कौन है, तो माँ तुझसे तुरंत एक सेकंड में बताएगी कि तुम्हारे पिता कौन है. In the same way, we want to understand about this world, we have to hear about it from the mother, from the Vedas. It's described there, and that Vedic knowledge comes from the Supreme Lord. तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, अगर इसका ज्ञान हमें चाहिए तो इसका पूरा ज्ञान जो है वेद माता है, वेद माता हमें देती है, और वो बताती है कि ये सारा सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं. As it's stated in Srimad Bhagvatam, Teni Brahma Hridaya Adi Kavaye. The Vedic knowledge was imparted into the heart of Lord Brahma by the Supreme Lord. तो जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में आता है कि ये जो वैदिक ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने स्फुरित किया. So all of this knowledge about the universe is coming from the Vedic knowledge. तो ये सारा जो ब्रह्मांड आ रहा है और इसका जो ज्ञान है वो सारा वैदिक ज्ञान से हमें प्राप्त होता है. Of course, for materialistic people like scientists, empirical scientists, it's very difficult for them to accept. लेकिन ये भौतिकवादी जो वैज्ञानिक होते हैं, जो स्यूडो वैज्ञानिक के मतलब जो कोई अधिकृत वैज्ञानिक नहीं है, उनको ये इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है. They are trying to explain the origin of creation. और वो प्रयास करते हैं सृष्टि का निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई. Just like there's a verse in Brahma Samhita, Yakchaksharesha Savita Sakala Grahanam Raja Samasta Suramurti Rashesha Teja यस्याज्ञया यस्याज्ञया भ्रमतिसम Sambartakala Chakro Govindamadipursam Tama. Right, the sun, the king of all planets, full of infinite effulgence, is described in Bhagavad Gita that it moves under the direction of the Supreme Lord. तो ब्रह्म संहिता की ये श्लोक में जो वर्णन आता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो पालन पोषण करने वाला सूर्य है
उस सूर्य की सृष्टि जो है और उसकी जो शक्ति है, गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा वो आती है और उनके आज्ञा के अनुसार वो कार्य करता है। Under the direction, under the authority of Govinda, the sun is mounting the wheel of time, the Kala Chakra. भगवान श्री गोविंद की आज्ञा के अनुसार और उनके भय के कारण ही ये सूर्य जो है वो काल चक्र को घुमाते रहते हैं। Right? We know from Srimad Bhagavatam, Ayur Harati Vaipumsam, like that. As the sun rises and sets, duration of life is reduced. श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में श्लोक आता है कि सूर्य देव जब उनका उदय होता है और अस्त होता है तो हर एक के जीवन का समय वो छीन लेते हैं। Right? Every day, another day, our life is less. और एक एक दिन करके वो हमारे जीवन में समय को निकालते लेते जाते हैं। So the sun, sometimes people, materialistic scientists, they think because the sun is the source of heat, that it is the cause of creation. तो ये जो भौतिकवादी साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं क्योंकि सूर्य जो है उनके शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है, पालन होता है, तो वो मानते हैं कि सूर्य के द्वारा सब कुछ हो रहा है। You heat something, and then they think life and germs and different bacteria, they begin to come about. तो ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे आप अगर पानी को उबालोगे या कोई पदार्थ को उबालोगे तो उसमें कई सारे बैक्टीरियाज और जीवों की निर्मित होती है। So they say because of the sun is the original source of life in the universe. तो इसलिए ये तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि सूर्य के द्वारा पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी जीव सृष्टि होती है। But in the purport to the Brahma Samhita given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he explains to us that the sun simply moves. It's simply a spherical planet moving under the authority of the Supreme Personality of Godhead. लेकिन हमारे श्री भक्ति सिद्धांत कहते हैं अपने तात्पर्यों में ब्रह्म संहिता के कि ये सूर्य जो है ये केवल एक गोलक है, अग्नि का गोलक है और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही, कृष्ण के अनुसार ही वो भ्रमण करता है और कार्य करता है। The sun is not independent. It has no independence. It's simply matter. सूर्य जो है कोई स्वतंत्र नहीं है और वो केवल एक स्थूल पदार्थ है। And that matter is moving under the direction of the Supreme Controller. और ये जो सूर्य लोक है वो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही भ्रमण करता है। Because everything comes from the Supreme Lord. क्योंकि सब कुछ जो आता है वो केवल परम पुरुषोत्तम भगवान से आता है। So this whole universe is all the creation of the Lord. और इसके लिए ये पूरी सृष्टि जो है ये केवल श्री कृष्ण का ही सृष्टि है। And as we cannot know everything about the Lord, because the Lord is so unlimited, it's very difficult for us to understand everything about this creation. क्योंकि भगवान कृष्ण खुद अनंत है और उनके बारे में जानना असंभव है, उसी प्रकार से उनकी जो सृष्टि है वो भी अनंत है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी असंभव है। We see the scientists study and they're coming up with more and more research, more and more information. तो हम देखते हैं कि ये वैज्ञानिक जो है वो बहुत रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कई सालों तक और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती रहती है हर बार उनको। In the beginning they were explaining everything as corpuscles. They had the corpuscular theory. तो पहले के शुरुआत में उन्होंने पर्क्यूस्कुलर थ्योरी की शुरुआत की थी कि सब सृष्टि उससे होती है। And then later on it became the wave theory. उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि नहीं ये वेव थ्योरी से सब निर्माण होता है। And then it became the quantum theory. और उसके बाद में और रिसर्च किया और फिर बताया कि क्वांटम थ्योरी से सब कुछ आता है। And they're still trying to explain the nature of this world. और फिर और ये प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि का प्रकृति या स्वभाव क्या है, अभी तक उसके ऊपर चल रहा है काम। And they're spending fortune, and so many great scientists, they're using their brains to try to understand this world. तो ये भौतिक सृष्टि को समझने के लिए बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट अपना बड़ा-बड़ा दिमाग लगा रहे हैं और अनगिनत पैसा भी जो है उसमें वो व्यर्थ कर रहे हैं। And this world is all just one tiny creation of the Supreme Lord. और ये जो जगत है वो भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि में एकदम छोटा सा से छोटा हिस्सा है। We can never begin to estimate the glories of that Supreme Personality of Godhead. और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तियों का और गुणों का वर्णन और अनुभव हम कभी नहीं कर पाएंगे। But the more we hear about, like for example, Jambudweep and Bomandala, then the more we are
completely amazed at the inconceivable potency of the Supreme Lord. जितना हम ये ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में, जम्बूद्वीप हो या भूमंडल, उसके बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य हो जाता है, हम थक्क हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारा और ज़्यादा आकर्षण बढ़ता है. One time, Srila Prabhupada was lecturing on some of the inconceivable phenomena in the universe when he was in Australia. तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में इसी अध्याय के ऊपर प्रवचन कर रहे थे जिसमें ब्रह्मांड के बहुत अचिंत्य सृष्टि का वर्णन है. So one of the devotees had been listening very closely to Prabhupada's lectures, and he stood up and he asked a question to Prabhupada. तो एक भक्त जो थे बहुत बारीकी से इस प्रवचन को सुन रहे थे और प्रवचन होने के बाद उन्हें हाथ उठाया और खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया प्रभुपाद को. He was a disciple of Srila Prabhupada. It was a respectful question. तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे वो और बहुत आदर के साथ उन्हें प्रभुपाद जी को पूछा. But he said, Srila Prabhupada, it all sounds so amazing. He said, you say there's something called a Timingala fish which can swallow whales whole. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये जो सारी सृष्टि का वर्णन है ये बहुत अचिंत्य है. जैसे आप कहते हैं कि तिमिंगला नाम की मछली होती है जो बड़े बड़े देवमासा या व्हेल को भी खा लेती है, निगल लेती है. And you say there are birds like eagles which can fly from one planet to another planet. और आपने कहा कि कुछ ऐसे प्रकार के पक्षी होते हैं, छील होते हैं कि जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ के जाते हैं. And you say there's oceans of sugarcane juice and mango juice and liquor and sweet water and salt water. तो आपने वर्णन किया कि जैसे कई सारे समुद्र है, कोई गन्ने के रस का है, कोई मधु का है, कोई दुग्ध का है या कोई शराब का भी है. He says, Srila Prabhupada, it all sounds so amazing. तो प्रभुपाद ये सब कुछ बहुत आश्चर्य करने वाला है, बहुत थक्क कर देता है हमें. Prabhupada looked at him and said, what do you know? You're still in the womb of your mother. तो प्रभुपाद ने उस शिष्य को देखा, बोले तुम्हें और क्या पता है, तुम तो बहुत छोटे, अभी तक अंडे से बाहर नहीं आए तुम. So the devotee sat down and just didn't say any more. तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो बस सुन लिए और फिर उसके बाद कुछ बोला नहीं उन्होंने. But we have to understand how the Lord does possess this inconceivable potency. हमें ये पता होना चाहिए लेकिन कि भगवान हमारे कृष्ण जो है वो अचिंत्य शक्ति के मालिक है. And the more we study the world, the more the scientists look, the more they're bewildered. तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये सृष्टि का जितना अभ्यास करते हैं, जितना रिसर्च करते हैं, उतना वो भ्रमित हो जाते हैं. They can never find the limit of even this material nature. ये जो भौतिक प्रवृत्ति का जो अंत है उस तक वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे. Because it's all coming from that one supreme personality of Godhead. क्योंकि ये सबके जो स्रोत है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है. That even if the time will come when they can count all the grains of sand on the planet or all the dust in the air, still they will never know the glories of the Supreme Lord. ये तथाकथित जो नास्तिकवादी साइंटिस्ट हैं वो भले ही पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी पत्थर कंकड़ है उसको गिन ले, जितने भी हवा में धूलि के कण है उनको भी गिन ले, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण के अनंत गुणों का पार नहीं देख पाएंगे. So we may consider, well, isn't this all material knowledge, knowing about the material world and the universe? And what has this got to do with Krishna? तो अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये तो पूरे भौतिक सृष्टि का वर्णन है, पूरा भौतिकतावाद है, इसमें सारे सृष्टि का वर्णन है, इससे क्या लाभ होने वाला है? We have to understand this is all part of Krishna's energy. This is just a tiny fraction, a tiny portion of the potencies of Krishna. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा सृष्टि है भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो उनसे संबंधित है. And everything in connection with Krishna is spiritual. So this whole material creation is not material, it's spiritual. और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है तो हर एक चीज जो है वो यहाँ की आध्यात्मिक है, इसको हमें भौतिक नहीं मानना चाहिए. To the pure devotees, they see everything in relation to Krishna. जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर चीज को, हर स्थिति को श्री कृष्ण से संबंधित मानते हैं. Srila Prabhupada was in New York, but he told the devotee, he said, actually I'm not in New York, I'm always in Vrindavan because I'm always thinking of Krishna.
तो श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में रहा करते थे, उन्होंने भक्तों को कहा कि मैं कोई न्यूयॉर्क में नहीं रह रहा हूँ, मैं तो वृंदावन में रह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मेरा मन जो होता है वो श्री कृष्ण के साथ होता है। And to the pure devotee, there is no material world because they see this whole world as Krishna's energy. जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भौतिक जगत अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं। Krishna has said in the Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. I am the source of the material and spiritual world. तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सारे भौतिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक विश्व जो है, इनकी सृष्टि मेरे द्वारा ही की गई है। Everything comes from Krishna. Therefore, if it's coming from Krishna, it's not material. It must be spiritual. क्योंकि ये श्री कृष्ण से आ रहा है, इसीलिए हर चीज और हर स्थिति जो है वो आध्यात्मिक ही है। You may say, well, it's temporary. It's only going to be there for some time. तो कोई कहेगा कि ये टेम्पररी कुछ समय तक ही रहने वाला है। But actually, material energy is also eternal. लेकिन ये भौतिक जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो भी शाश्वत है, सनातन है। Just sometimes it's manifest and other times it's unmanifest. तो कुछ समय वो व्यक्त होती है और बहुत समय तक अव्यक्त रहती है। Sometimes we take the elements, put them together and put up buildings. Other times we break everything and knock it all apart. तो कभी कभी ये भौतिक सृष्टि से हम साधन लेते हैं और उससे बिल्डिंग बनाते हैं और बाद में वही बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और नष्ट कर देते हैं। We see in Nasik, they're putting up so many towers, apartment buildings, and after some time they will be breaking them all. तो हम देख रहे हैं नासिक में कई जगह पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, टावर बन रहे, तो कुछ समय रहेंगे उसके बाद उनको तोड़ दिया जाएगा। And so the elements which go into the creation, they will remain when there's annihilation, when there's destruction. तो ये जो पंच महाभूत है जिससे ये सृष्टि होती है, उनसे हम सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जब विनाश हो जाता है तो भी ये पंच महाभूत रहते हैं। Sometimes there's creation, it's all manifest, other times it's unmanifest. तो कई समय पे सृष्टि ये व्यक्त होती है इस जगत में और कई समय पे वो अव्यक्त स्वरूप में रहती है। Just like all of us, we are all living entities, we are all souls, we have bodies, our bodies will be given up, but the soul is eternal. तो जैसे हम सब इस भौतिक जगत में आत्मा रहते हैं, हमें ये शरीर मिला है, लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम जो शक्ति है भगवान की वो हमेशा रहेगी। We enter into the form of Mahavishnu at the time of devastation, and then when there's again creation, we come out from Mahavishnu. तो जब महाप्रलय होता है तो हम भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर देते हैं, और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है तो फिर से हम जन्म लेके कार्यकलाप शुरू करते हैं। And all the elements of the material nature, the panchabhutis, earth, water, fire, air, ether, they're also eternal. Sometimes they're manifest, other times not manifest. तो भगवान की जो भौतिक शक्ति है, जिसके प्रधान जो गुण है पंच महाभूत, वो भी शाश्वत है, बहुत समय पे वो दिखते हैं और कई समय पे वो अदृश्य रहते हैं। But it's all Krishna's energy. लेकिन ये सब कुछ श्री कृष्ण की ही शक्ति है। And we have to recognize that, how everything actually is Krishna's. और हमें ये देखना चाहिए किस प्रकार से हर वस्तु और स्थिति जो है वो कृष्ण के निर्देशन में है। In Bhagavad Gita there's a nice verse. Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachami na pranashyati. Lord Krishna is saying, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर ये श्लोक कहते हैं कि जो हर स्थिति में मुझे देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है और मैं उसमें स्थित हुए देखता है, वो कभी मुझसे दूर नहीं है और मैं कभी उससे दूर नहीं हूँ। So Maharaj Parikshit had been hearing different times about, from Sukadeva Goswami, he was speaking something about the Jambudvip, and he'd heard about Priyavrata and how Priyavrata had created these islands with the rims of his chariot. तो महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं और जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन उनको प्राप्त हो रहा है इस अध्याय में, और उसी के चलते प्रियव्रत महाराज की कथा आती है किस प्रकार से प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से अलग अलग द्वीपों का वर्णन किया और निर्माण किया। So Maharaj Parikshit wants to know more about it. He wants to hear the details. और फिर ये जब सुना तो महाराज परीक्षित को इसको और डिटेल में जानना है और विस्तृत जानकारी चाहिए। Yeah, with the details then it becomes more factual evidence. तो जब हम विस्तृत में या सखोलता से कोई जानकारी लेते हैं तो उसके सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। So this is Krishna consciousness is science. Everything is factual.
तो कृष्ण भावना ये एक विज्ञान है और हर एक जो है वो वास्तविक प्रमाण है. We have to have facts, we have figures and facts to support everything we're saying. और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने सारे अचूक वर्णन दिया है हर स्थिति का, लोक का और दूरियों का. तो ये हमें पढ़ना चाहिए और उससे हमें विश्वास होना चाहिए. Just like when the Americans said they were going to the moon, Prabhupada was very doubtful from the beginning. तो जब अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हम चंद्र पे जाने वाले हैं तो प्रभुपाद जो थे वो उनको बहुत बड़ा संशय था और वो हमेशा डाउट लेते थे इसके ऊपर. And then when they were showing pictures, oh, this is a man on the moon, Prabhupada said, that cannot be the moon. तो जब अमेरिका के टेलीविजन पे ये दिख रहा था कि हमने चंद्र के ऊपर पहला अपना कदम रखा है, देखो यहाँ के फोटो देखो, वीडियो देखो, तो प्रभुपाद बोले ये कोई चंद्रलोक बिल्कुल नहीं है. The moon is a heavenly planet. The moon is not a desert like they were showing. क्योंकि चंद्र जो है प्रभुपाद कहे कि ये स्वर्गलोक का है और ये जो दिखा रहे यहाँ पे केवल एक रेगिस्तान दिखा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं चंद्रलोक. So Prabhupada explained he said you don't go to the moon just by mechanical means. तो प्रभुपाद ने कहा कि कोई चंद्रलोक पे जाना चाहते हैं तो केवल यान में बैठ के जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता. That's the demon, that's demonic, that's like Ravan. ये रावण की मनोवृत्ति है. Ravan was building a staircase to go to the moon. और रावण जो था वो ऐसी सीढ़ियां बना रहा था कि वो सीधा लंका से चंद्रलोक पे चली जाए. So the modern scientists are in that Ravan, the same mood as Ravan. और ये जो आजकल के वैज्ञानिक है वो रावण के भाई बंधु है. And you can see that although they said they went to the moon, nobody went again. तो हम देखते हैं कि ये सब लोगों ने कहा कि हम चंद्र पे गए, लेकिन बाद में दूसरी चक्कर किसी ने नहीं लगाई, एक में खत्म कर दिया. And what did the proof? They said, no, we brought the rocks back from the moon. और फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास सबूत है कि आप चंद्र पे गए थे? तो कुछ वहां के पत्थर उठा के लेके आए हो. And people all come to see the rocks. और वो पत्थर जो है उसको पैसा भर के लोग म्यूजियम में देखते. So they spent billions of dollars to bring some rocks. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए पत्थर लेके आने के लिए. But you want to go to the moon, you can go, but you have to do a lot of punya karma to go to the moon. हाँ, अगर आपको चंद्रलोक पे जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे? उसके लिए हमें बहुत पुण्य कर्म करके तभी प्राप्त होगा वो स्थान. It's a higher planet, it's in the heavenly regions. You want to go there, you have to do pious activities. तो ये स्वर्गलोक का है, उच्च लोक का ये ग्रह है चंद्र, और वहां पे जाना है तो बिना पुण्य के कोई जा नहीं सकता. We have to explain the facts to people. We're telling them the truth. We have proof. It's all here in our scriptures. तो हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, और हमारे शास्त्रों में पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार बताया गया है सब कुछ. They're looking in the star, they're using their telescopes, they're spending big money to make more and more powerful telescopes to see what's going on these other places. तो आजकल के वैज्ञानिक जो है वो बहुत बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, बड़े बड़े दूरबीन बनाते हैं, लंबे चौड़े और बहुत ही महंगे दूरबीन बनाते हैं ताकि बाकी के लोकों में क्या चल रहा है उसको झांक के देख सके. So we have to show, we have all the you want to know about these other planets, we can tell you from our books, all the information is here. तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि आपको अगर इतनी उत्सुकता है बाकी के ग्रह लोकों में क्या चल रहा है झांकने की, तो उससे अच्छा आओ हमारे पास, हम आपको हमारे ग्रंथों से बताएंगे क्या चल रहा है वहाँ. When we tell them about creation, then they don't believe us. We tell them Mahavishnu breathes out, the universes come out. They say, oh, come on, this is mythology, this is not science. तो जब हम प्रचार करते हैं अपने ग्रंथों से बताते हैं कि महाविष्णु के ब्रह्मरंध्र से ही सारे सृष्टि का सृजन होता है, ब्रह्मांड आते, तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बोलते क्या बात कर रहे हैं आप, पूरी मैथोलॉजी बता रहे हैं हमें. But look at their science. They say everything came from the black hole. और उनका विज्ञान देखो, वो कहते हैं कि सब सृष्टि का निर्माण जो है वो कृष्ण विवर से हुआ है. Did you ever see anything coming out of a black hole? क्या आपने कभी देखा है कृष्ण विवर या ब्लैक होल से कोई सृष्टि हुई है? Or they say it all came about by the Big Bang. और दूसरा फिलोसॉफी रहते हैं कि ये सब सृष्टि का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ है. Make a big bang, right? Did you see anything come out? There was a creation come about by the Big Bang. तो एक बड़ा आप विस्फोट करो और देखो क्या वहां से कोई सृष्टि का निर्माण होता है. Here it is, Nasik city.
और एक बड़ा बॉम्ब गिरा और नासिक सिटी का निर्माण हुआ. There was a big bang last night. We woke up in the morning. There it was, Nasik city with all the buildings and apartments and roads. तो हमने देखा रात को हम सोए उसी समय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सुबह उठ के देखा तो पूरा नासिक शहर बन गया था, पूरे बिल्डिंग सड़कें सब बन गई थी. Right? Did it all come about like that? और वो कहते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि का निर्माण इसी प्रकार से स्फोट के बाद हुआ है. Of course not. There were some people, intelligent people, who got together and they planned everything and they arranged the roads and the telecommunication and the water and the electricity and all of these things. It doesn't come about by a big bang. It comes about by some intelligent people. तो कुछ बुद्धिमान लोग थे जो एक साथ आए और उन सब ने विचार किया कैसे रास्ते होने चाहिए, कहाँ से पानी आना चाहिए, किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. तो कोई एक बड़ा विस्फोट से नासिक शहर नहीं बना है, लेकिन बुद्धिमान लोग एक साथ आने के बाद ये शहर का निर्माण हुआ है. And so we're explaining the creation in that way, that there's a supreme intelligent person who created this whole universal manifestation. और हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से शहर की किसी बुद्धिमान लोगों ने रचना की, उसी प्रकार से पूरे विश्व की रचना भी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने की, अपने बुद्धि से पूरी रचना की उन्होंने. It's much more scientific than what these scientists claim. और ये ज़्यादा वैज्ञानिक तर्क है जिससे बजाय जो वैज्ञानिक हमें बताते हैं विस्फोट के द्वारा हुए उससे. So this is the real science, Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवत जो है वो विशुद्ध विज्ञान है. Hare Krishna. Any question? Comment? किसी का कोई प्रश्न है? Yes, In this fifth canto, henceforth we will be seeing so many inconceivable things which are like beyond our mind, and even in TOVP this big model of creation is being made, but some of the team members, they say that the total knowledge given in Bhagavatam is insufficient, and for cosmology there are other Vedic literatures, they are also referring to it. So sometimes when questions are put in front of us, then our knowledge also about Bhagavatam is not complete, about the cosmology. So if we want, then how should we do? Should we study entire thing, spending some time, or just have a faith that this is correct and we have to just accept whatever it is? तो कृष्ण नंदू ने बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न समझने के लिए बहुत बुद्धि लगेगी. वो पूछ रहे हैं कि अभी मायापुर में हम देख रहे हैं कि TOVP में वैदिक प्लानिटोरियम बनाया जा रहा है. तो जब वो बनाया जा रहा था तो कि भागवतम में जो वर्णन दिया गया है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो कम समय में 7 ही दिन थे तो वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो उसके लिए अन्य वैदिक शास्त्रों से भी हमें संदर्भ लेना पड़ता है, तब जाके वो कॉस्मोलॉजी पूर्ण होता है. तो जब हमें ये प्रश्न पूछा जाता है लोगों के द्वारा, तो क्या हमें केवल श्रीमद् भागवत को एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए या उसके लिए समय निकाल के और अध्ययन करके पूरी कॉस्मोलॉजी समझनी चाहिए? I would suggest that if we study the books of the Goswamis, we can get all the information we need. And Prabhupada said all the research has been done for us by the Goswamis of Vrindavan. तो महाराज जी का ये वैयक्तिक ये रहा है, साक्षात्कार रहा है कि हमारे षड गोस्वामियों ने जो भी ग्रंथों की रचना की है उसमें उन्होंने सबका डिटेल वर्णन दिया है. तो हमें और रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं कि अगर हम षड गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा रिसर्च हमें रेडीमेड प्राप्त है. I personally got a lot of information from Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita, giving us information about the higher planets and what's going on there. तो ये जो अन्य लोग हैं और उच्च लोग हैं उनका बहुत विस्तृत वर्णन सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतामृत में महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त हुआ. And of course also about the spiritual world, Vaikuntha and Goloka. और विशेष रूप से उसमें वर्णन है वैकुंठ लोगों का और उसमें भी गोलोक वृंदावन का वर्णन है. But I think we can get everything there within the books of the Goswamis. I don't know what Sadaputta read, but Sadaputta Prabhu, of course, did a lot of valuable work, and his research is very valuable. So reading Sadaputta's books can be very helpful. तो हाँ, षड गोस्वामियों के ग्रंथों में सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सदापुत्र प्रभु जो है वो मेन रिसर्चर थे ये कॉस्मोलॉजी के बारे में, और उन्होंने जो भी रिसर्च किया है और जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वो भी अधिकृत माने जा सकते हैं. But Prabhupada had given some instructions to the Bhakti Vedanta Institute about this. Mainly Prabhupada wanted to establish that life came from life, not from matter. तो प्रभुपाद जी ने जब साइंटिस्ट के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना की
तो प्रभुपाद की बहुत विशेष इच्छा थी कि उसका हमारा मूल आधार होना चाहिए, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से ही जीवन की सृष्टि होती है। इस सिद्धांत के समझने के लिए और प्रचार करने के लिए वो संस्था खोली थी। The other things like creation and other different planets in the universe, Prabhupada, I don't know, Prabhupada talked much about that with devotees. और लेकिन दूसरा जो भाग है जिस प्रकार से पूरे भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन आता है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा विस्तृत कहीं उल्लेख नहीं किया है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। Yeah, maybe some of the BI people could tell us more what Prabhupada wanted. तो BI के जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो बता सकेंगे कि प्रभुपाद जी का इसके ऊपर क्या टेक है। But certainly Sadaputta Prabhu's books are very useful. Druta Karma also maybe something. तो धृत कर्मा प्रभु और सदापुत प्रभु जो है, इन्होंने काफी रिसर्च किया है, तो उनके ग्रंथों से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। These are people who we can trust. They've done some valuable work and research. They've read a lot, and whatever they present, I would accept it. तो ये दोनों जो भक्त है, इन्होंने ये ऑथेंटिक है, इस्कॉन के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है और उन्होंने कई सारा रिसर्च किया है, तो उनके ऊपर हम विश्वास करके उनके ग्रंथों के अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Hare Krishna. They don't have any material motives. They're pure-hearted devotees, so what they present is the truth. तो ये जो दो भक्त रहे हमारे इस्कॉन के, ये इनके अंदर कोई गलत उद्देश्य नहीं थे, केवल शुद्ध प्रभुपाद की सेवा का ही उद्देश्य था, क्योंकि ये उनकी शुद्धता जो थी उनके पर्पस की, उसके कारण ही हम उनके ग्रंथों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। Okay, Hare Krishna. Any other question? Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. God Premanand. हरि हरि बोल। His Holiness भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय। तो आज शाम को गीतामृत का प्रवचन भी महाराज जी द्वारा दिया जाएगा, तो सारे भक्तों से अनुरोध है 7:30 बजे से आप मंदिर में उपस्थित रहिए और महाराज का जो सत्संग है उसका आप लाभ लीजिए।